السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز میں ہوں ایسے شہزاد۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ انتقال کے باوجود بااثر بھائی عمر حیات اور محمد حیات نے 4 بہنوں اور ایک بھائی کی زمین کو ہتھیانے کے در پر ہو گیا۔ بااثر بھائیوں کو بلوا کر ایس ایچ او نے زمین پر ہل چلوا دیے۔ متاثرہ افراد نے ایس ایچ او کی منتیں سماعتیں کرتے رہے۔ میڈیا نے ایس ایچ او کی موقع پر ہل چلوانے کی ویڈیو بھی حاصل کر لی۔ متاثرہ افراد اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو پریس کانفرنس دکھاتے ہیں۔ میں عمران حیات اور میری پیچھے 4 بہنیں میری ساتھ ہیں۔ ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں اور اپنی موروثی جائیداد کے لیے، جس کے اوپر عمر حیات نے ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر دفعہ جب بھی ہم آتے ہیں وہ وہاں پر درجنوں بندے لے کر غیر قوم کے ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں وہاں سے واپسی آنا پڑتا ہے۔ اور ابھی بھی ہم پولیس کے ذریعے گئے تو پولیس نے ان کو بھی بلایا اور ہمیں بھی بلایا، جبکہ ہمیں اس نے تحقیق کے لیے لے کر گیا، بولا چل کے دکھائیں، لیکن پولیس نے محکمے نے اس کی ان کو بھی بلایا اور ان کے تقریباً درجنوں بندے وہاں پر بلا کے اور ہمارے اوپر جو سلم مسلط ہو گئے وہ لوگ۔ اور اس کے بعد پولیس نے کہا کہ آپ ان کو ہی جو وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے اور ہمیں وہاں سے بھیج دیا ہے۔ ہماری نہ یا پولیس کوئی سنتا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ملوث محمد حیات اور یہ عمر حیات، یہ دونوں بھائی ہمارے ایک شامل ہیں، اور نہ ہمیں یہ جائیداد سے کسی طرح بھی ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ وہاں کراچی سے آ کے تنگ ہو جائیں اور یہ ہماری جائیدادوں پہ قابض ہے، مکانوں پہ جو والدہ کے پاس تھے ہمارے، اور ہمارے انتقال بھی ہمارے نام ہے، سب چیز ہمارے نام ہے۔ اس کے باوجود یہ ہمیں کسی بھی طرح ذلیل کر کے ہماری جائیدادوں پہ قابض ہونا چاہتا ہے، اور مہربانی کر کے ہمیں ہماری جائیدادیں واپسی دلائی جائیں اس سے، تاکہ یہ اس سے ہماری جان بخشی کی جائے۔ اسی جان کی بھی دھمکیاں دیتا ہے، اور بڑے والے تو محمد حیات ہے، اس نے تو ہمیں کئی بدماشوں کی بھی دھمکیاں دے چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نے بولا پتہ نہیں کون سے گینگ کے نام لیتا ہے، وہ بولتا ہے جی فلانا گینگ، اور یہ پولیس ہمارا کچھ نہیں کر سکتی یہاں پہ۔ عمر حیات بھی یہی بولتا ہے کہ نہ پولیس ہمارا کچھ کر سکتی ہے، آپ آ کے کچھ لے کے دکھاؤ یہاں سے، آپ کو یہاں سے ہم ایک انچ جگہ نہیں لینے دیں گے، اور ہمارے ساتھ مہربانی کی جائے، ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ بہنیں پریشان ہیں، اس میں ایک بہن ہماری بیوہ ہے اور دوسری بہن بہت نہایت ہی غریب ہے، جس کی وجہ سے اپنا گزر بسر وہاں کیسے کرتے ہیں، اور یہ اتنا کرایہ بھر کر یہاں ہم لوگ آتے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آتے ہیں۔ ابھی بھی ہم لوگ جو آئے ہیں، بڑے بھائی کو یہاں پر دروازے کے باہر ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، جس کے اندر بڑے بھائی کے 2 لڑکے ہارون حیات، حرمین حیات یہ شامل تھا، اور ان کے سالے کے 3 بچے لڑکے تھے، جس کا ایک کا نام شان ہے، اور اس سے 2 چھوٹے اس کے بھائی شامل تھے، اور باقی انہوں نے باہر سے گنڈے منگوائے ہوئے تھے۔ تقریباً 12 سے 15 لڑکے تھے جنہوں نے مسلح ہو کے یہاں پہ حملہ کیا دروازے پر، اور جس کی وجہ سے بھائی کو بھی پاؤں میں چوٹ آئی اور وہ آیا۔ اس کا بھی جا کے کمپلین کی تو اس میں انہوں نے غلط ویڈیو دکھا کے ان کو بولتا کہ یہ تو آپ مار رہے ہو، جبکہ ان کے دروازے پہ آ کے انہوں نے سب نے 12-15 بندوں نے مارا، اور مہربانی کر کے ہماری جائیداد دلائی جائے۔ یہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور ڈیرہ غازی خان IG ڈیرہ غازی خان سے، RPO راجن پور سے، ان سب سے ہم التماس کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری جائیدادیں دلائی جائیں، کیونکہ پہلے بھی ہم راجن پور بھی TPO کے پاس جا چکے ہیں، دو چکر ہم نے لگائے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تھانے میں سٹی تھانے میں جاتے ہیں، SHO سے ملتے ہیں جا کے، وہ ہمیں ایسی ٹرکا دیتا ہے، بٹھا کے وہاں سے واپسی بھیج دیتا ہے۔ خبروں کی تفصیلات آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ خبر شامل کرتے ہیں ضلع فیصل آباد کے تھانہ غلام آباد کے SHO رائے ارشد علی کھرل سے لاہور کے سینئر صحافی عدنان بشیر کھرل کی اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کرتے وقت دونوں کے اوپر پھول کی پتیاں نشاور کی گئیں، اور عدنان بشیر کھرل نے رائے ارشد علی کھرل کو گلاب کے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ خبروں کی تفصیلات آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر قانون پارلیمانی امور آفتاب عالم، ایڈوکیٹ مرکزی رہنما PTI اسد کیسر اور صوبائی وزیر آباش عاقب اللہ خان کی صوابی بار کونسل کی حلف برداری تقریب میں شرکت اور شرکا سے خطاب کیا۔ وزیر قانون آفتاب عالم نے نومنتخب کابینہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، نئی کابینہ وکلاء برادری کی فلاح بہبود اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سینٹرل جناب عاصم رضا، گروپ لیڈر جناب محمد نعیم بٹ، چاروں صوبائی چیئرمینز پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن جناب حاجی محمد اقبال، خیبر پختونخوا جناب
चौधरी इफ्तिखार अहमद, मटू पंजाब जनाब चौधरी आमिर अब्दुल्ला सिंध और जनाब सैयद मोहम्मद नासिर आगा बलूचिस्तान ने आज बरोज़ 22 जुलाई 2024 को होल्डिंग टैक्स के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम पर मुश्तमिल फेडरल मिनिस्टर ऑफ इक़्तिसादी अमूर जनाब अहमद खान चीमा, फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनाब मलिक अमजद ज़ुबैर टवाना के साथ मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुल फराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब शुमाली के जनरल सेक्रेटरी राजा वहीद महफूज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान से इनके दफ्तर में खुसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात में अहम तंजीमों अमूर ज़ेर बहस आए, जबकि इस्लामाबाद के जलसे और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की तहरीक के हवाले से भी आम मुशावरत की गई। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब शुमाली राजा वहीद महफूज ने कहा कि पार्टी पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। जो ऐसा करने की सोच रहे हैं वो मुंह की खाएंगे। बानी चेयरमैन को मुख्तलिफ हरबों से मजीद पाबंदियां सासल नहीं रख सकते। जल्द वो अवाम में होंगे और अवाम इनको भारी अक्सरियत से मुंतखब करवा कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर फायज होंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि राशिद गुल फराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ज़िला मरी के रहनुमा राजा इमरान सुल्तान ने कहा कि MNS राजा उसामा इशफाक सरवर एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा है जो किसी की ब्लैक मेलिंग दबाव में नहीं आएगा। राजा इशफाक सरवर ने हमेशा दिलेरी और बहादुरी से असूलों की सियासत की और कभी किसी आमर के सामने गर्दन नहीं झुकाई। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की आमरीत का दौर इंतहाई सख्त और कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं था। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि मीटिंग एजेंडा बनू वाक़े की मजम्मत मज़ीद लाए अमल ज़ेर गौर। उमैर आज़म खान एडवोकेट मीटिंग में कसीर तादाद में मेम्बरान और दीगर वकला ने शिरकत की, जिसमें मुंतज़र ज़ेल अफ़क़रादात पास हुई। बनू में होने वाले वाक़यात की शदीद अल्फाजों में मजम्मत की गई। बनू वाक़े की साफ और शफाफ इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कर रही हैं। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि लोअर चतराल पुलिस के जमा अनवारुल हक को पूरे सरकारी इजाज़त के साथ इनके आबाई कब्रिस्तान कारी पाई में सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में SDPO सर्कल दरवेश इकबाल करीम, SDPO सर्कल चित्राल सजाद हुसैन, DSP सिक्योरिटी SSP U फारूक ज़्यादा पुलिस अफसरान समेत सिविल अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अपोजिशन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की PT की तो नहीं है, उन्होंने हल्फनामे भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दिए हैं जो असम्बली के अंदर उन्होंने वोट उठाया है। और असल चीज़ हल्फनामे डिक्लेरेशन होते हैं। PTA की तरफ से तो ना उनके नॉमिनेशन पेपर जमा है, ना उन्होंने PTA की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है। फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत की थी और वही ऐसे था। अपोजिशन पंजाब असम्बली के बाहर हुल्लड़बाजी हम ना मानेंगे का राग लाहौर अजीम चौधरी से। लाहौर पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने असम्बली के गेट के बाहर कुर्सियां लगाकर हकीकी पंजाब असम्बली का नाम देते हुए इजलास शुरू कर दिया। इजलास की क़यादत सरदार अहमद बुचर ने कर रहे थे। असम्बली के अंदर न जाने का फैसला करते हुए अपोजिशन ने असम्बली के गेट पर शदीद नारेबाजी की। इनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था कि बानिए PTI को रिहा किया जाए। अपोजिशन अरकान ने आज़ाद कारकुनों की हैसियत से अपने बयाने हल्फी जमा करवाए थे और अपनी मर्जी से सुन्नी तहरीक में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो अपने आप को PTI के कारकुन कहते हैं, जो कि कानूनी लिहाज से गलत है। इसके मुतल्लिक़ हुकूमती मौक़िफ़ भी वाज़िह है, ये कि सुन्नी तहरीक के कारकुन हैं, इनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है।
खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि लेस्को के 132 केवी सिस्टम के ट्रांसमिशन खंभों की ब्रेसेस चोरी करने का मामला। लेस्को के साहू की मेल के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड 132 केवी लाइन की पेट्रोलिंग कर रहे थे कि कुछ लोग असले से लेस 132 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम के खंभों की ब्रेसिंग सिक्योरिटी गार्ड के टॉर्च मारने पर मुसल्लह अफराद ने गार्ड पर फायरिंग शुरू कर दी। ब्रेसेस चोरी करके भाग निकले। मौके पर पुलिस को कॉल की और मुलजिम नसीर के डेरे पर शक की बुनियाद पर चेकिंग की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली में मलक जहीर इकबाल की अलग अलग मुलाकात। लाहौर अजीम चौधरी से पास्टर दानियाल सलीम भी डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद के हमरा थे। उन्होंने डिप्टी स्पीकर सरदार सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में सूबे में अकलीतों और बैनुल सूबाई राब्ते बढ़ाने से मुतल्लक गुफ्तगू की गई। गवर्नर हाउस के दरवाजे अकलीतों समेत अवाम के लिए खुले हैं। मुल्क में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के फ़रोग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क को बेहतर बनाने के लिए सबको मस्बत किरदार अदा करना है। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट मॉडर्न टाउन के DSP चौधरी फैसल शरीफ की टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। मारूफ ड्रामा निगार हदायतकार खलील रहमान कमर के साथ होने वाली वारदात चंद घंटों में ट्रेस। DIG ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की DSP चौधरी फैसल शरीफ के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन के DSP चौधरी फैसल शरीफ की टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। मारूफ ड्रामा निगार व हदायतकार खलीलुर रहमान कमर के साथ होने वाली जो वारदात है चंद ही घंटों में ट्रेस कर लिया गया। OCU मॉडल टाउन ने कामयाब कार्रवाई करते हुए वारदात में मुलविस 12 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में आमना अरूज, मेमूना हैदर, ज़ीशान कयूम, जवेद इकबाल, तनवीर अहमद, फलक शेर, कैसर अब्बास, रशीद अहमद, मियाँ खान, बाबर अली, शुमाइल बीबी और मरियम शहजादी शामिल हैं। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली खतून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मारूफ ड्रामा निगार की दरख्वास्त पर अगवा और डकैती की दफात के तहत थाना सुंदर लाहौर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजमान खलीलुर रहमान कमर को अगवा कर 1 करोड़ रुपया तावान का मुतालबा करते रहे। तावान की रकम ना देने पर मुलजमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान को वकूए के चंद ही घंटों में ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से वकूआ में इस्तेमाल होने वाली 3 गाड़ियां, वायरलेस सेट, जदीद राइफलें, पिस्टल्स और दर्जन गोलियां बरामद कर ली गई हैं और तफ्तीश का अमल जारी है। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी, IT एक्सपर्ट, पब्लिक रिलेशंस और तजर्बाकार अफसरान की मदद से मुख्तसर से वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इंतहाई अहम इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाली वफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना के इजलास में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग से मियाँ जाजेब की रिपोर्ट के मुताबिक DPO टोबा आबाद निसार की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग में सर्कल अफसरान, DSP, SHO जिला और इंचार्ज ब्रांच DPO ऑफिस में मौजूद थे। DPO ने पुलिस की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया और अहम केसेस की रिपोर्ट भी ली। DPO ने डकैत गैंग्स, इश्तिहारी, मुजरमान, मंशियार फरोश और नाजायज़ असला रखने वालों, पतंग फरोशों और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया है।